Learning any new skill can be very boring, very messy, and sometimes very demotivating. Acquiring a new skill needs a lot of time, effort, patience, hard work and also practice. और ऐसा नहीं है कि आपने अगर किसी एक स्किल को एक बार सीख लिया तो आप उसमें हमेशा के लिए एक्सपर्ट हो जाओगे। नहीं, एवरीथिंग इज अपडेटिंग। आप जो स्किल सीखोगे उसमें कई सारी चीजें हमेशा अपडेट होती रहेंगी। एंड इफ यू लैग्ड बिहाइंड लर्निंग दोज अपडेट्स देन यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। यू नीड टू ऑलवेज अपस्किल योरसेल्फ। You need to always keep up with the updates, with the trends and with the new things that are being included on that skill. First you pick a skill and then you go for some courses and then you start learning from the basics and then you upgrade your difficulties and then you practice and then you go ahead. But sometimes something comes which feels very difficult, which feels very demotivating to learn. आपके साथ ऐसा हुआ होगा, हम जब मैथ्स बनाते थे तो कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स कुछ आते थे जो बिल्कुल सॉल्व नहीं होता था और उस वक्त ऐसा लगता था कि मैथ्स आर द वर्स्ट सब्जेक्ट। बट अगर वही चीज बहुत अच्छे से सॉल्व होती है तो ऐसा लगता है कि it is the best part. So the same thing will happen when you will start learning a skill. That time you will feel like quitting or leaving in the midway, but sometimes somehow you will go ahead and you will think why you started. And then finally after a long time of highs and lows you will learn a skill. And that's it. That's how you learn a skill. आपको बस ये ध्यान में रखना है कि ये आप एक बार में नहीं सीख पाओगे और सीखने के दौरान ऐसे बहुत सारे फेजेस आएंगे जहां पर आपको मतलब डिमोटिवेशन रहेगा। बिल्कुल आप कोई चीज सीख नहीं पा रहोगे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने कुछ नई चीजें ली ही नहीं है। Learning a new skill can be very interesting. It can be made very interesting, very mind-blowing and very exploring. Because when you learn a new skill, it will feel like very new perspective for you. You will get to know very new things that you were totally unaware of. But when you start learning new things, when you start learning new skill, you upskill yourself. Your confidence level grows up and then you feel very good about yourself. So learning a new skill can be very interesting and it is very important. You should always learn new skill or you should learn always new things of the skill you know or of the skill you have because that's how you will be able to go with the trends and that is important. क्योंकि अगर आपने सीखना छोड़ दिया तो आप पीछे रह जाओगे और आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे. So to be at the top you always need to update yourself. You always need to follow the trends. You always need to acquire those things which the market is demanding. So in this video we will be exploring how to learn a new skill, how to pick a course, how to select a course, कि आपको पेड कोर्स की तरफ जाना चाहिए या फिर आप फ्री कोर्स से भी सीख सकते हो. अगर फ्री कोर्सेज सीखोगे तो फ्री कोर्सेज को किस तरीके से निकालोगे, अगर आपको पेड कोर्सेज सीखने हैं तो आपको किस किस प्लेटफॉर्म पे जाने चाहिए. एंड ऑल्सो एट द एंड आई विल गिव यू सम बोनस टिप टू लर्न अ न्यू स्किल. So first of all we start about picking a course. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पेड कोर्सेज और फ्री कोर्सेज में आखिर डिफरेंस क्या होता है. पहला तो डिफरेंस ये होता है कि पेड कोर्सेज पैसे में मिलेंगे और फ्री कोर्सेज फ्री में मिलेंगे. That's it. But what is the psychological differences between paid courses and free courses? Have you ever noticed कि जब किसी चीज के लिए आपने पैसे खर्च करे होते हैं, आपने कुछ अगर इन्वेस्ट किया होता है तो वहां पर आप ज्यादा सीरियस होते हो, राइट? बट अगर कोई चीज हमें फ्री में मिल रही होती है तो हमें वो उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग और उतनी ज्यादा हमें उसकी वैल्यू पता नहीं होती है. तो दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस of buying a paid course or going to a free course. And I will recommend that if you have some extra pocket money then please go for a paid course of any skill. भले ही आप उसे पढ़ो या ना पढ़ो but please go for a paid course क्योंकि फिर आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत सीरियसनेस आएगी. And at the time you are जो प्रीमियम कोर्सेज भी है ना वो भी बहुत सस्ते हैं. They are very cheap. I don't think कि cheap वो सही वर्ड होगा. It is just very affordable. There are lots of platform like Udemy, Coursera, Skillshare जहाँ पर बहुत कम पैसों में और बहुत अच्छे अच्छे बेस्ट सेलिंग कोर्सेज हैं. If you will go to Udemy you can get courses in 500. मतलब उसमें कोर्सेज के दाम बढ़ते भी हैं but if you are new to there then you can get any course in just 499. I have bought 2 courses from Udemy and they were mind blowing. First was of graphic designing and the other was of web development and they both are very good, very interesting. Their tutors are very best. So I will recommend you to go to Udemy and buy any course. And now let's see about free courses. Free courses as you know वो free होंगे, उसके लिए आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी but उसके लिए आपको काफी ज्यादा जुगाड़ करना पड़ेगा. Talking about paid courses वो आपको एक विंडो में एक प्लेटफॉर्म पर सारे कोर्सेज मिल जाएंगे ऑफ वन ट्यूटर. बट आपको फ्री कोर्सेज में हो सकता है कि किसी एक स्किल को या फिर किसी एक पार्ट को सीखने के लिए आपको 2-3 चैनल्स पर देखना पड़े, आपको बहुत ज्यादा ढूंढना पड़े. वो आपको यूट्यूब पर या फिर और बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स मिल सकते हैं बहुत सारे जुगाड़ से. बट उसमें आपको भाग दौड़ करना पड़ेगा. आप एक कोर्स किसी एक प्लेटफॉर्म से या फिर किसी एक विंडो पर जाकर के सीख नहीं पाओगे. यू विल हैव टू रश एवरीवेयर टू पिक एनी कोर्स और टू लर्न एनी स्किल इफ यू आर गोइंग टू फ्री कोर्सेज. बट आज के टाइम पर यूट्यूब के पास सब कुछ है
है, हर स्किल के बारे में कुछ ना कुछ, मतलब बहुत सारी चीजें YouTube पर मौजूद हैं, फ्रॉम लर्निंग द बेसिक टू एक्सपर्ट लेवल। आई थिंक एवरीथिंग इज प्रेजेंट ऑन YouTube. You just have to search in better way. हाँ, आपको एक इशू आ सकती है कि you will not be much more serious and committed. But if you are committed to learn a new skill and if you are damn serious about acquiring a new skill, तब आपको ऐसी कुछ इशू नहीं आ रही होगी. But still, best of luck from my side if you are going to free courses or if you are going to paid courses. And now come to the second thing, and that is practicing it. You know, learning का part सिर्फ learning the basic होता है most of the time. Rest things depend on how much you practice, how much you are giving time to that skill. It needs time, it needs practice with different problems. Suppose that you are learning video editing. तो video editing में अगर आप कोई एक सॉफ्टवेयर पिक करते हो तो उस सॉफ्टवेयर की अगर आपने सिर्फ बेसिक पढ़ ली, then it is enough. आपको सारे टूल्स के बारे में समझ में आ गया कि अगर सपोज दैट आपको टेक्स्ट को एनिमेट करना है तो आपको कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करना होगा, एंड दैट्स इट. अब आप प्रीमियर प्रो पे जाओ या फिर किसी सॉफ्टवेयर पे जाओ जिसे आपने सीखा है, एंड देन राइट सम टेक्स्ट एंड देन ट्राई टू एनिमेट इट. दैट्स इट. इट इज नॉट लाइक अकेडमिक्स जहां पर आपको इतनी मोटी मोटी बुक पढ़नी पड़ेगी. यू जस्ट हैव टू पिक एनी स्किल एंड देन लर्न दैट सॉफ्टवेयर एंड फॉलो द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, and that is practicing. I think learning is all about 20%. The rest is practicing. Currently I am learning about sound designing. What I do is कि I learn one thing and then I practice it daily. जब तक मैं कोई एक चीज सीखा नहीं हूँ और उसे मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर लिया, उसे 3-4 तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर लिया, तब तक I will not go for other new thing. Alright? So instead of learning like academics, go for practicing it. जब तक आप उसे practical नहीं करोगे, you will not be able to become an expert or able to learn any skill well. And the next thing, collecting resources. जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे देन यू विल नीड सम रिसोर्सेज. लाइक इफ यू आर इन वीडियो एडिटिंग देन आपको उस वीडियो एडिटिंग में आपको बहुत सारे मोशन ग्राफिक्स, बहुत सारे प्लगइन्स, बहुत सारे एक्सटेंशंस, बहुत सारे प्रीसेट्स, तो आपको फिर उन रिसोर्सेज को कलेक्ट करना है ताकि जब आप रियल क्लाइंट के लिए काम करो तब उस वक्त आपको भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़े. आप लर्निंग के दौरान ही हर फील्ड के रिसोर्सेज को कलेक्ट कर लो. अगर आप कोडिंग कर रहे हो, वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो या फिर वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, आपको जितने भी टूल्स की जरूरत है, जितने भी रिसोर्सेज की जरूरत है, कलेक्ट देम एंड ऑर्गेनाइज देम, क्योंकि वो आपको जरूरत पड़ने वाली है इन क्रिएटिंग सैंपल्स और इन वर्किंग फॉर रियल क्लाइंट. एंड इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. एंड देन नाउ वर्क ऑन ट्रायल प्रोजेक्ट. आपने वेब डेवलपमेंट सीख लिया, देन स्टार्ट मेकिंग फ्रॉम योर ओन वेबसाइट. आपके पास कंटेंट है, अपने बारे में लिखो, अपने बारे में एक किसी तरीके से सिंपल सा एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाओ और आपने जो भी चीजें सीखा है उन चीजों को उस पर इंप्लीमेंट करो. दैट्स इट. दैट विल बी द वेरी बेस्ट थिंग, वेरी बेस्ट स्टेप टू मेक अ पोर्टफोलियो एंड ऑल्सो टू प्रैक्टिस. एंड देन while learning, create samples for your portfolio, and that will happen ultimately if you will follow all that step, from picking a course to practicing to collecting resources and working on trial projects. If you will do all of them, then ultimately you will have some samples for your portfolio. But आपको क्या करना है कि आपको पोर्टफोलियो के लिए अलग से भी कुछ बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने हैं जिससे कि आप क्लाइंट को दिखाओ तो क्लाइंट ये माने कि हाँ आप एक्सपीरियंस्ड हो और आपको कुछ आता है उस फील्ड में. That's it. That was the important steps to learn any skill, acquire a new skill. And now come to some bonus tips, and that is share your learning. Best way to learn any skill or anything is to teach. आपने एक पार्ट सीखा, आप दूसरे को सिखाओ. अगर कोई दूसरा आपके पास नहीं है तो आपके पास आपका फोन है, आपके पास आपका फोन में कैमरा है. स्टार्ट रिकॉर्डिंग योरसेल्फ व्हाइल सेइंग कि आपने ये सीखा, अगर ये सीखा तो ये कैसे काम करती है. आप ऐसा फील करो कि someone is listening to you and someone has come to learn from you और आप उसको सिखाओ. It is the best way to learn any skill very easily, and try to learn the trends first. अगर आप किसी फील्ड में हो तो उस फील्ड में क्या ट्रेंडिंग पे चल रही है, मार्केट में किस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड है, लर्न दैट थिंग फर्स्ट. मतलब बेसिक सीख लिया, मॉडरेट लेवल तक सीख लिया, एंड देन लर्न सम ट्रेंड्स कि कौन सी चीज अभी इन डिमांडिंग है, बिकॉज दैट्स व्हाट विल जनरेट रेवेन्यू फॉर यू. तो या बस इतनी सिंपल सी चीजें थी टू लर्न एनी स्किल, टू एक्वायर अ न्यू स्किल, एंड आई होप यू गॉट दैट. इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड फाउंड हेल्पफुल देन प्लीज शेयर विद समवन हु नीड्स टू हियर दिस. शेयर विद योर फ्रेंड्स और फेलो फ्रीलांसर्स you know and help them grow. I will see you in the next episode. Till then, keep exploring and take care.